Okay, hello students, welcome back to inverse trigonometric function. In this video, we are going to solve some questions related to inverse trigonometric functions. Range से related कुछ questions we are going to solve. So first question is tan inverse x का whole cube plus cot inverse x whole cube when x is positive. Second is sin inverse x into cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x. पूरा एक साथ उसका रेंज. cot inverse x plus sec inverse x plus cosec inverse x. sec inverse x का स्क्वायर plus cosec inverse x का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू. Then cot inverse log base 4 by 5, 5x square minus 8x plus 4. And finally cos inverse 1 upon e power x plus e power minus x. So I am going to solve them one by one. Let's start from here. e power x plus e power minus x. e power x की जब भी बात आती है तो what we see here is कि e power x के साथ 1 upon e power x भी है. तो e power x कितनी बार आया? How many times e power x is there? बार बार. As I say in my language, it is coming again and again. बार बार आएगा तो क्या करेंगे? अगर कोई टर्म बार बार आता है तो उसको t मान लेते हैं एंड दैट बिकम्स t plus 1 by t. What you have to keep in mind that t is e power x, and as we are talking about the range, so I can tell you that t should be greater than 0. t should be greater than 0 because t is e power x. काम खत्म. Now you know the range of this. हमें इसका रेंज पता है. t plus 1 by t का रेंज माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी. x plus 1 by x बताया था. बट इन दिस केस इट इज ओनली गोइंग टू बी 2 to infinity because t is positive. So if I take the reciprocal, what do I get? I will get 1 by 2, say 1 by infinity. And then when I take its cos inverse 0 is 1. Hello, cos inverse 0 is pi by 2 and cos inverse 1 by 2 is pi by 3. So that is the range of function pi by 3 से pi by 2. Question number 5 की बात करते हैं. Question number 5 में if you see ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करना we know very well. So let me say कि ये क्वाड्रेटिक है और इसका रेंज फाइंड करते हैं तो I get minus d by 4a to infinity because e is positive and that gives me minus d is b square minus 4a and c divided by 4a is 5 to infinity. What do we have? 80 minus 16 plus 16 4 by 5 to infinity. Now we have to take its log. अगर इसका log लेंगे to the base 4 by 5 और फिर cot inverse भी लेना है तो log 4 by 5 to the base 4 by 5 is 1 and log infinity to the base 4 by 5 is not infinity, it will be minus infinity because log का बेस 1 से कम है. log का बेस is 4 by 5 less than 1 है. log का बेस 1 से कम है तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग ना हो करके डिक्रीजिंग होता है. तो इंफिनिटी पे वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस इंफिनिटी. तो वी हैव टू राइट माइनस इंफिनिटी टू 1 और अभी उसका कॉट इनवर्स बचा हुआ है. तो कॉट इनवर्स अगर हटाना है तो वी कैन सिंपली टेक कॉट बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ 1 फंक्शन. तो कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी. अब कॉट इनवर्स का ग्राफ इफ यू रिमेंबर तो दैट वाज लाइक दिस. माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू क्या है? पाई है और 1 पे वैल्यू क्या होती है वो तो सबको पता है, पाई बाई 4. सो आंसर कम्स आउट टू बी पाई बाई 4 से पाई. pi by 4 close से pi open and that is the question number 5 का range. So idea is very simple.
कोई भी इनइक्वालिटी में कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं. जस्ट कीप इन माइंड कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड वन वन. बाकी के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. ना क्वेश्चन नंबर दिस. What do we have here? Sec inverse x का होल स्क्वायर प्लस cosec inverse x का होल स्क्वायर. Let's say कि sec inverse x को t मान लिया, लेकिन ये तो बार बार नहीं आया था, इसको t क्यों माना? आया है ना. This is t and this is pi by 2 minus t. This is pi by 2 minus sec inverse. Sec inverse plus cosec inverse pi by 2. So this is pi by 2 minus sec inverse. So I will say the question is t square plus pi by 2 minus t square. Now we have to find its minimum value. और t हमने माना है ये sec inverse x. इसका मतलब this is 0 to pi minus pi by 2. t का वैल्यू 0 to pi minus pi by 2 है. अब वैसे तो ये सीधा सा एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई टी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगाया और टी स्क्वायर ऐड कर दिया. और क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? माइनस डी बाई 4a, जबकि ये पॉजिटिव है. बट ये सारी कहानी तब होती है व्हेन this variable is free, this variable is unbounded, this variable is free. x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. देन वी से द रेंज इज माइनस डी बाई 4 से इंफिनिटी. लाइक इन दिस केस देयर वाज नो प्रॉब्लम विद x, बट इन दिस केस t इज बाउंडेड. और जब t बाउंडेड होता है तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? जब t बाउंडेड होगा तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? क्वाड्रेटिक में सिखाया था, रेंज में भी सिखाया था, एंड दैट इज बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर विल प्रोसीड लाइक दिस, स्टेप बाय स्टेप, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से. ये एक और आइडिया है ग्राफ बनाने का. इसका ग्राफ बना लो. इसका d फाइंड करोगे तो d कम्स आउट टू बी b स्क्वायर माइनस 4ac. that comes out to be minus pi square. d माइनस पाई स्क्वायर आया है, मतलब d पाई स्क्वायर आने माइनस आने का मतलब देयर इज नो रूट. नो रूट का मतलब ये ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होने वाला है. दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी above x axis. Now the idea is कि इसका मिनिमम वैल्यू आई कैन से कि माइनस डी बाई 4a होगा, प्रोवाइडेड अपने इंटरवल में हो. तो ये इंटरवल की बात करते हैं और वर्टेक्स की बात करते हैं. तो अगर ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे तो वर्टेक्स इज माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी मतलब पाई स्क्वायर बाई 4a मतलब 8. दैट इज द वर्टेक्स पाई बाई 4 कॉमा पाई स्क्वायर बाई 8. और हमें क्या लेना है? वी हैव टू टेक x का वैल्यू 0 टू पाई, 0 टू ये पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 पाई. लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस, माइनस ये पाई बाई 2 वाला पोर्शन नहीं लेना है. दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट. सो रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमें मिल रहा है वर्टेक्स मतलब पाई स्क्वायर बाई 4 से का ये मिनिमम वैल्यू हो गई खत्म. दैट इज योर मिनिमम वैल्यू. बट इफ यू डोंट ड्रॉ दिस, इफ यू डोंट ड्रॉ देन व्हाट विल हैपन? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आई विल गेट, पहले ए कॉमन लेते. यू शुड रिमेंबर ऑल द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज ए कॉमन लिया. सेकंड स्टेप x के इन दिस केस t के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस करते. माइनस पाई बाई 2 का हाफ माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर किया तो पाई स्क्वायर बाई 16, वो प्लस माइनस कर देंगे. एंड देन वी गेट 2 इंटू टी माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर
माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, that is pi square by 8. Now we can find the minimum value. The minimum value of this would be 0 because बोलो because t का वैल्यू पाई बाई 4 अपने सिचुएशन में है. We have the t equal to pi by 4 in our range. अपने डोमेन में t का वैल्यू 0 से पाई बाई 4, 0 to पाई है, उसमें पाई बाई 4 आएगा तो एट t equals to pi by 4 minimum value will be pi by 4 minus pi by 4, 0 हो गया. Pi square by 8 into 2 and that is pi square by 8 तो बाहर है, तो minimum value is pi square by 8. तो अगर फ्री है, if x में कोई बाउंड्री नहीं है तो वी कैन टेक सिंपली माइनस डी बाई 4 से प्लस इन्फिनिटी और माइनस डी बाई 4 से माइनस इन्फिनिटी. लेकिन अगर x बाउंडेड है लाइक दिस तो वी हैव इधर कंप्लीटिंग द स्क्वायर और द ग्राफ. ग्राफ्स आर ऑलवेज द बेस्ट वे, so you have to be very comfortable with the graph. So now we are going to solve question number 1, 2 and 3. Okay, so now we have question number 3 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कई सारे क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डन, 2 क्वेश्चंस. नाउ दिस cot इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स. sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x pi by 2. sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x is pi by 2 and cot इनवर्स का रेंज 0 to pi ओपन इंटरवल. इनको ऐड किया तो मिला pi by 2 से 3 pi by 2. Which is wrong. Why so? Because sec inverse plus cosec inverse का वैल्यू pi by 2 कब होता है? sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2 if and only if x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. And so in that case it will not remain this. बिकॉज अगर x का वैल्यू ये है तो cot इनवर्स का वैल्यू क्या हुआ? सो cot इनवर्स का वैल्यू होगा, थिंक ऑफ इट, ग्राफ्स आर ऑलवेज द बेस्ट वे टू हैंडल सो मेनी क्वेश्चंस. तो माइनस इंफिनिटी से हमें -1 तक आना है और फिर 1 से इंफिनिटी तक जाना है. 1 का मतलब हुआ cot इनवर्स x है. बोलो x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी. सो वी डू नॉट हैव दिस पोर्शन. सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स? सो cot इनवर्स का वैल्यू विल बी 0 to pi by 4 0 to pi by 4 यूनियन, देखना ये पॉइंट 3 pi by 4 होगा, 3 pi by 4 to pi, that is the cot inverse, और प्लस ये अपना pi by 2 आ गया. Now if I add them I will get pi by 2 say 3 pi by 4 union 5 pi by 4 say 3 pi by 2 and that is your answer. तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हमारे सामने हैं. We have done so many questions like this. Everywhere it is this condition. कहीं न कहीं एक टर्म दिखेगा ये pi by 2 है. अगर ये pi by 2 है तो उसको pi by 2 लिख देते हैं. But we forget this portion की नहीं, that is restricted. There is a restriction. It cannot always be pi by 2. हाँ, tan inverse x plus cot inverse x है. That is always pi by 2. There won't be any problem. Next is question number 2. Question number 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में देखना साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इन सबका हमें रेंज फाइंड करना है, सबके प्रोडक्ट का. द गुड आइडिया एंड द बैड आइडिया वॉट एवर यू से कि भाई साइन इनवर्स भी है, कॉसेक इनवर्स एक्स भी है. साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स शुड बी बिटवीन -1 and 1. कॉसेक इनवर्स एक्स है तो एक्स शुड बी आउटसाइड -1 and 1. टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स तो गुड बॉयज हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. They are always open, they are always defined.
प्रॉब्लम है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, टू फंक्शंस साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स है, दे आर सेइंग कि भाई x कैन बी ऑलवेज बिटवीन -1 and 1 एंड सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स आर टेलिंग यू नहीं -1 to 1 के बाहर होना चाहिए. So when would they both be happy? And they both will be happy if x equal to only these two numbers -1 and 1. बाकी कहीं भी डिफाइंड नहीं होगा. अगर साइन इनवर्स डिफाइंड है तो कॉसेक इनवर्स नहीं होगा, कॉसेक इनवर्स है तो साइन इनवर्स नहीं होगा. So domain is only these two number, तो simply we can find the range. Now tell me, 1 पुट करते हैं. 1 पे साइन इनवर्स का वैल्यू π/2 एंड कॉस इनवर्स का वैल्यू कॉस इनवर्स 1 0 होता है. तो 0 इंटू समथिंग वो 0 आ गया. -1 लिख करते हैं. -1 लेंगे तो साइन इनवर्स का वैल्यू -π/2, कॉस इनवर्स -1 इज पाई, tan इनवर्स -1 इज -π/4, cot इनवर्स -1 इज 3π/4, सेक इनवर्स -1, सेक इनवर्स -1 ध्यान करो, सेक इनवर्स -1 से अच्छा है यू राइट पाई माइनस सेक इनवर्स 1. सेक इनवर्स 1 का मतलब कॉस इनवर्स 1 और कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू 0 हुआ तो पाई आ गया. This is how I proceed कि first I make the numbers positive and then I make them into sin, cos और tan. बाकी आपकी मर्जी, whatever you want. Now cosec inverse x, cosec inverse -1 is minus cosec inverse 1 and cosec inverse 1 is sin inverse 1/1, sin inverse 1 is -π/2. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 मतलब माइनस 1 2 3 4 5 6, 2 पार 6 मतलब 64 एंड ऊपर 3 एंड 1 2 3 4 5 6 पाई पार 6. दीज आर द टू नंबर्स इन द रेंज. 2 पॉइंट का ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, दिस विल बी ओनली 2 पॉइंट. एक होगा -1, दिस और एक होगा 1, 0. दैट्स इट. And finally, we are going for question number 1. Question number 1 में tan inverse x को t मानेंगे because वो बार बार आया है. बार बार कहाँ है? π/2 minus tan inverse x. So the question is t cube plus π/2 minus t cube. We are given that x is positive and so t will be 0 to infinity. Hello. No, 0 to π/2. tan inverse x है, tan inverse x का रेंज -π/2 से +π/2 होता है. So this is always 0 to π/2 if x is positive. अब क्यूबिक है, how do I solve this? क्यूबिक का रेंज तो -∞ से +∞ होता है. बट ओनली व्हेन x इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड. लेकिन यहाँ पे तो अपना x जो है इन दिस केस t रेस्ट्रिक्टेड है. रेस्ट्रिक्टेड है तो रेंज कुछ आ जाएगा. बट उसके लिए एफडी यूज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा. बट एक्चुअली नॉट, बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है हमें. एंड द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ये देखो कैंसिल हो गया, π/2 आया एंड ब्रैकेट इज स्क्वायर. ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर मतलब 3t स्क्वायर. ये -πt, ये -π/2t माइनस 3π/2t प्लस π²/4. तो यहाँ टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, ये टी स्क्वायर आएगा 3t स्क्वायर. -2ab में -πt और -π/2t तो -3π/2t और b स्क्वायर जो है सॉरी a स्क्वायर π²/4 आ गया. देयर इज नो अदर कांस्टेंट टर्म. क्वाड्रेटिक का रेंज हमें पता है -d/4a से इंफिनिटी, जो कि यहां नहीं लगेगा बिकॉज t इज रेस्ट्रिक्टेड. और t अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो क्या करते हैं? completing the square. Now pause the video and try to find the range if you are seriously trying to learn. Pause करो और find करो. I am going to do this. पहले a कॉमन लेंगे,
ये पाई क्यूब बाई 8 बाहर रखा, और फिर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट मतलब t का कोफिशिएंट माइनस पाई बाई 2 के हाफ का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 60. Now this portion just like here, यहाँ भी हमने लास्ट स्क्रीन पे किया था ना. सी दिस इज 3 पाई बाई 2 इंटू टी माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस 3 पाई क्यूब बाई 32 और प्लस पाई क्यूब बाई 8. Now it is very simple. Now what we do, this is, ये 4 पाई क्यूब बाई 32 है, ये 3 पाई क्यूब बाई 32 है, तो दैट विल गिव यू प्लस पाई क्यूब बाई 32. थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले. नाउ वी हैव t बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2. t अगर 0 से पाई बाई 2 है, रिमेंबर हाउ डू वी फाइंड रेंज, t से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे. t माइनस पाई बाई 4 किया तो मिला माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 ना, उसका स्क्वायर किया तो मिला पाई स्क्वायर बाई 16 से पाई स्क्वायर बाई 16. एक्चुअली नो, 0 क्लोज से पाई स्क्वायर बाई 16. समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो रेंज वाला वीडियो देखो, फंक्शन चैप्टर रेंज का वीडियो देखेंगे. फिर इसमें 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई किया तो मिला 0 से 3 पाई बाई 2 भी है तो 32 हो जाएगा. एंड देन पाई क्यूब बाई 32 ऐड किया तो पाई क्यूब बाई 32 कॉमा 4 पाई क्यूब बाई 32 मतलब पाई क्यूब बाई 8. एंड दैट इज योर आंसर. So these are some questions related to range of the function. So inverse trigonometric function में range कैसे find करते हैं उस पर related there are some questions. Thank you.